Good morning, students. As you know that our chapter congruence of triangles is going on, and we have already discussed all the introductory part of this, and today in this video we will start with the exercise 7.1. And as you all know that integers we have done, fractions and decimals we have done, exponents and powers we have done, and the congruence of triangles is going on. And then we have few chapters of aptitude as well. We have to do, I guess, that is chapter number 1 to 5 from your KYA book, that is Know Your Aptitude. And this is the, we can say, the syllabus of PA1 syllabus. So now let's start the congruence of triangle exercise 7.1. So what we have discussed so far, there are the 4 criterias in which we have to make the triangles congruent. So what are these 4 criterias? First is SSS, this is side side side. Second is SAS, that is side angle side. Third is ASA, that is angle side angle. And the fourth one you can say is RHS, that is right angle, hypotenuse and side. Right angle, hypotenuse and side. Now let's start the exercise 7.1. First question is the fill in the blanks, and the second question, give any two real life examples of the congruent shapes. कोई भी रियल लाइफ दो एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हो कॉन्ग्रेंट शेप के. मैंने आपको बताया था दैट यू हैव अ नोटबुक, और उस नोटबुक के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सारे कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के. आप 50 रुपीज़ के 2 नोट्स दे दीजिए, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे बिल्कुल. कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम साइज, सेम एरिया, एग्जैक्टली द सेम. तो ये हमारे रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, if triangle ABC is congruent to triangle FED under the corresponding ABC and FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. Now, this is sum third. What is given that triangle ABC is congruent to triangle FED, then we have to write all the corresponding parts of the triangle. So we need to know this concept that if triangles are congruent, what does it mean? क्या मतलब हुआ उसका एरिया इक्वल होगा, उसका पेरीमीटर इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल सेम हो गए वो. अब बिल्कुल सेम हो गए तो क्या क्या सेम हो सकता है? सारी साइड सेम हो सकती हैं और सारे एंगल्स सेम हो सकते हैं ट्राइंगल्स के. तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, ए बी किसके इक्वल होगी हमारी? एफ ई की कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की बेटा? यस, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की. फर्स्ट साइड ए बी विल बी इक्वल टू एफ ई. सेकेंड साइड बी सी will be equal to ED. We have to see the naming as well. किस तरह हमने नेमिंग दी है ट्राइंगल्स की, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने क्राइटेरियाज लिखने हैं. देन थर्ड, AC will be equal to FD. ये तो तीनों हो गई हमारी साइड्स. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारी? और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. इक्वल्स मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा? हमारा एंगल F के इक्वल होगा. एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल डी. तो ये हमारे इक्वल होंगे. और इक्वल क्यों होंगे? इनको क्या रीज़न दिया जाता है? इनका रीज़न होता है हमारा CPCT. क्या रीज़न है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, CPCT की अब आप फुल फॉर्म पूछेंगे. CPCT की सबको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. CPCT कब आता है? CPCT तब आता है जब कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं बाय द प्रॉपर्टी और बाय द टर्म कॉल्ड CPCT. अब ये CPCT क्या होता है? CPCT इज बेसिकली corresponding parts of congruent triangles. corresponding parts of congruent triangles. तो ये फुल फॉर्म हो गई हमारी CPCT की. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमें बताना था. अब let's see some fourth. If triangle DEF is congruent to triangle BCA, some fourth, triangle DEF is congruent to triangle BCA. This is given to us that these two triangles are congruent to one another, that is triangle DEF is congruent to triangle BCA. Now what we have to find, which of the following parts of triangle BCA is corresponding to. अब हमें बताना है BCA triangle के ये वाले parts किसके corresponding होंगे. Means what we have to say that angle E will be equal to, then EF will be equal to
then angle F will be equal to and DF will be equal to. ये हमें चीज़ें बतानी है. अब देखिए बेटा, जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ एंगल ई, और वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ ई हेयर एट द मिडल, एंड हेयर इज़ द मिडल एंगल सी, सो एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल सी. ठीक है. अब दूसरा देखिए आप ई एफ कहाँ पर है हमारा, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, द लास्ट टू. सो सिमिलरली हेयर द लास्ट टू इज सी ए, तो ई एफ की करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड इक्वल होगी, दैट इज सी ए. देन एंगल एफ इज एट द third position, or you can say first from the right hand side, so here it is angle A. And similarly df is first and third, and here at the first and third is B and A, so the side df will be equal to the corresponding side of the triangle BCA, that is BA. तो ये चारों चीज़ हमारी आ गई हैं जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था, और इसका अगर आपसे रीज़न पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. जब भी कोई ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. ये बेटा हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, तो हम एक साथ में एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. आप एग्जाम्पल देखिए एक बारी. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं हमें, triangle ABC and triangle PQR are congruent under the correspondence ABC RQP. ABC किसके हमारे congruent दे रखा है, RQP. See the naming is very important. Without naming we will not able to find the correct option for the corresponding angle or side. Now first is PQ. We have to find the which part of triangle ABC is congruent to PQ. Where is PQ? Here is P and Q, so it will be equal to C and B. So PQ will be equal to CB. Then angle Q. Angle Q is in the middle. Here what is in the middle? Here it is the middle in angle B. So therefore angle Q will be equal to angle B. And now let's see the third, that is RP. And RP will be equal to here first and third. So first and third is A. C. So we can say the correspondence in triangle ABC and RPQ. This means angle A is equal to angle R, or you can say A is correspondence to R. These are the vertices. You can say A is correspondence to R, B is correspondence to Q, and C is correspondent to P. So we can say that these parts are equal to each other by the property CPCT, corresponding parts of the congruent triangles. सो अभी बेटा हमने इस वीडियो में क्या किया है, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करी है, एग्जांपल फर्स्ट डिस्कस करा है. तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दोबारा से सारा इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड करना है. इसका इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से करनी है, दोबारा से एग्जांपल फर्स्ट करना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द सॉल्यूशंस ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो तब तक आप ये बैठ के अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए. काइंडली अपडेट योर वर्क ऑन टाइम पे अपना काम पूरा करिए. टेस्ट के टाइम पे आप अच्छे से रिपोर्ट कीजिए. आज भी बहुत बच्चों के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है मेरे पास, एंड आई एम वेटिंग. कल तक उनका वेट करूँगा कि आपका कैसा टेस्ट गया. आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इट वॉज वेरी इजी टेस्ट. तो बेटा आपका आज होमवर्क है, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.